Why there is less attendance today? Only 14. Don't. Hmm. Sir, maybe people will join in a bit. Okay. So let's start. Let's not wait for others to join because it's already 10:03. So let's start today's session. Last time we have seen what are the number sets, real numbers का set कैसे define किया था, complex number का कैसे define किया था. We have seen all that. We have also seen when we write plus over there, we will denote by positive number. When we write minus, it is negative number. And we also write z raised to non-negative. Then to define it is non-negative number. So now we will move further. Next concept in the sets. These are already revised concepts, so I am going fast. And we have to cover syllabus as well. बहुत सारे न्यू कंसेप्ट भी आपको सीखने हैं, तो ये पुराने कंसेप्ट हम फर्स्ट में रिवाइज कर लेंगे. व्हाट इज सबसेट? वी हैव टू सेट्स A and B. Then A is called subset of B if every member in A is also an element of B. तो सबसेट का डेफिनेशन क्या है? A is subset of B if we have every member in A, every element of A is also an element of B. और सबसेट डिनोट कैसे किया जाता है? Subset is denoted by this notation: A is subset of B. Okay. So how we write for every element X? If X belongs to A, then X belongs to B. इसको ऐसे भी लिखते हैं: A is contained in B and B contains A. This means the same, that is A is subset of B. Okay. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि कब हम बोलते हैं कि A is not subset of B? When we say that A is not subset of, where there is at least one element in A which is not belongs to B. A में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो B में नहीं है. Then we can say that A is not subset of B. Okay. When it is a subset, every member of A, A के हर एक एलिमेंट को हम पूछेंगे whether it belongs to B or not. If it belongs to B, then A is subset of B. अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट हमको मिलता है जो A में है पर B में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे A is not a subset of B. Okay. So that's about the subset. What is next is proper subset. When I have A subset of B, it is also possible that B is subset of A. Okay. If A is subset of B, it is also possible that B is also subset of A. If both the conditions are happening, then we can say that A is equal to B. So if A is subset of B and B is subset of A, then we can say that A is equal to B. Okay. अभी हम लोग को अनदर कंसेशन है, दैट इज कॉल्ड एज A is proper subset of B. सम बुक डिनोटेड बाय, यहाँ पे जो नीचे अंडरलाइन है सबसेट रिलेशन के नीचे, वो नहीं लिखते हैं A is proper subset of B when, ये कब होगा? If we have two condition, that is A should be subset of B and A should not be equal to B. तो कब हम बोलेंगे कि A is a proper subset of B? When A is first subset of B. पहले तो सबसेट होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए? B में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, एक B में कोई तो एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B should not be in A. Then we can say that A is a proper subset of B. Okay. तो यहाँ पे लिखा भी है डेफिनेशन में, A and B are set. A is a proper subset of B if and only if every element of A is in B, but there is at least one element which is present in B that is not in A. तो एक एग्जांपल लेते हैं, सो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सपोज मैं A लेता हूं 1 2
बी लेता हूं 1 2 3, कैन आई से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी? Yes, sir. यस, करेक्ट. So, कैन आई से दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? Yes, sir. क्यों बोल सकते हैं हम प्रॉपर सबसेट है? सर बी में 3 है ना एक्स्ट्रा एलिमेंट. तो बी में कोई तो एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. ओके, गुड गुड. So let us revise the example based on this subset relation. तो ऑलरेडी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल. So let us see the example. Can you see the screen? yes, sir. Okay. A is Z plus. Okay. B is n belongs to Z such that 0 less than or equal to n less than or equal to 100. And C is the set 100, 200, 300, 400 and 500. Evaluate the truth and falsity of each of the following statement. So ऐसे जब क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क each question, you have to justify every answer. Okay, so let's answer one by one. Is B subset of A? Yes, sir. Let us write the set, then we can answer better. What is set A? A is set of Set all of positive. positive integer 1 2 3 dot 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 and goes to infinity. Let us write B set. B is a set. देखो क्या क्या लिखा है. All the n belongs to set of integers. Integers में होना चाहिए और क्या कंडीशन दिया है? 0 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 100. तो मैं स्टार्ट करूंगा 0 से. Yes, sir. 0 1 2 dot 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 100. Right. Let us write C set as it is. 100, 200, 300, 400 and 500. ये कौन सा मेथड से मैंने लिखा? ये तीनों जो लिखा है वो कौन से मेथड से? सेट रूस्टर फॉर्म में है. और जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कौन से फॉर्म में है? सेट बिल्डर नोटेशन में है. Yes, sir. Okay. Now I answer this question. Is B subset of A? 0 नहीं आएगा ना सर. 0 neither positive nor negative. So 0 is in B, but 0 does not belongs to A. So A is false. So I will write A. It is false. Why it is false? क्योंकि 0 belongs to B, but No, does not belong. 0 does not belongs to Okay. A. What about second option B? Is C proper subset of A? क्या लगता है आपको? पहले तो पूछोगे कि C is subset of A or not. Yes, sir. Infinite जाएगा ना A. तो 100, 200, 300, 400, 500 आएंगे. Yes, 100 C में भी है, 100 A में भी होगा क्योंकि 1 2 3 4 आपको जितना आगे बढ़ाना है बढ़ा सकते हो. 4 5 6 7 8 100 200 400 500 सब एलिमेंट A में आ जाएगा. Yes, sir. So I can write B is true statement. और ट्रू क्यों है? C is subset of A and A में कौन सा एलिमेंट एक्स्ट्रा लोगे? कोई भी एक एलिमेंट लो जो A में है बट C में नहीं है. 1 2 3. I can write 2. 2 belongs to A, but Does not belongs to. 2 does not belongs to C. Therefore, it is a proper subset. Proper फर्स्ट subset. डेफिनेशन क्या देते हैं? सबसेट देता है और आपको एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखना है. एक्स्ट्रा एलिमेंट कैसे लिखोगे? जो सेकंड सेट में होगा बट फर्स्ट सेट में नहीं होगा. ओके. व्हाट अबाउट थर्ड? कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 100. 100 is common between
C and B. So third statement is true. वो क्या बोलता है? At least one element is common. So I can write this is C statement is true. Yes, sir. क्या लिख सकते हो आप? 100 Belongs. belongs to C and 100 also belongs to B. आपको रीजन आउट भी करना है, ट्रू और फॉल्स में रीजन आउट भी करना है आपको. D. What is D? C subset of. C सबसेट ऑफ B है क्या? Is C subset of B? No, sir. No. So I can write it is false statement. कोई तो बोला false है. क्यों false है ये? सिर्फ 100 आएगा. सिर्फ 100 इज कॉमन है, बाकी कोई एलिमेंट. So I can write 200 belongs to C, but 200 does not belongs to B. सबसेट का मतलब है every element should belongs to the second set. What about E? I will write over here. E का क्या होगा? Is it true or false? True रहेगा. True. So हमेशा remember कर, every set is Subset of itself. every set is subset of itself. So you write that. So every true and false you have to justify the answer. Every subset is subset of itself. So write that. Okay. So that completes the answer. Understood this? Yes, sir. Yes, sir. Let us take one more Yes, sir. example. Which of the sets are equal? कौन कौन से सेट इक्वल है? A and D. Let us write the sets so that ये आइडिया आएगा. देख के नहीं आइडिया आता है. तो A तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट है आपको पता है, करेक्ट? Yes, sir. You can justify which element belongs to this. Let us write the B set. यहाँ पे ड्रॉ करते हैं B set. नंबर लाइन ड्रॉ करने का, अगर रियल नंबर है तो नंबर लाइन ड्रॉ करना मस्ट है. नंबर लाइन मतलब क्या है? पहले तो 0 ड्रॉ करो, 1 2, अपने को 3 तक चाहिए, 3. यहाँ पे क्या है? -1 -2. ओके, ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गया. अभी क्या कर सकते हैं? -1 को इंक्लूड करना है. इंक्लूड करना है तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे? हमको Got. वी हैव टू फिल द सर्कल. एंड 3 को इंक्लूड नहीं करना है. 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो मुझे हॉलो सर्कल बनाना है. एंड देयर आर द एलिमेंट्स इन बिटवीन ऑल दिस एलिमेंट. ये सब किसके पार्ट है? सेट बी के पार्ट है. इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? -1 को इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट, एंड 3 को एक्सक्लूड करना है तो राउंड ब्रैकेट. Every number between these two will belongs to B. So I can write B is equal to this set. -1 को इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, and all the elements in between. What about C set? कोई C भी ड्रॉ करो. 0 1. 0 1 2 3. और यहाँ पे क्या है? -1 -2. ओके. तो C all the elements belongs to R. क्या क्या है? हम लोग को -1 को इंक्लूड नहीं करना है अभी, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है यहाँ पे. 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है. Yes, sir. और all the elements in between these two will be part of set C. तो C का डेफिनेशन क्या होगा? -1, 3 open bracket. Six. ओपन ब्रैकेट. तो जैसे मैंने बोला, ये जो राउंड ब्रैकेट होता है ओपन ब्रैकेट है, मतलब वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है. और स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, और उसमें क्या होता है कि वो नंबर हम लोग इंक्लूड करते हैं. तो -1 इज पार्ट ऑफ B, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ C. अभी D का सेट देखो. D का सेट क्या आएगा?
कैन यू राइट द सेट? जब भी z में होता है तो नंबर्स लिख सकते, -1 स्ट्रिक्टली लेस देन x, स्ट्रिक्टली लेस देन 3। कौन कौन से इंटीजर है -1 से 3 के बीच में? 0, 1, 2. 0, 1, 2. So D set is like this. Then E set 1 2 1, 2. Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे क्या है, z Positivity. पॉजिटिव 0 पॉजिटिव में इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए 1, E 2. is equal to 1, 2. So you have to define this set. मतलब जो जो डेफिनेशन आपको इसके फॉर्म में नहीं दिए है, सेट बिल्डर मेथड में दिए है, सेट रोस्टर में नहीं दिए है, तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा. यू हैव टू राइट दैट B is a set of interval from -1 to 3. -1 is included, 3 is not included. C में both -1 and 3 is not included. Okay. Can I say C is subset of B? Sorry, sir. यहाँ पे जो लिखा है, Okay. can I say C is subset of B? Yes, sir. Yes, correct. क्योंकि every element in C is in the element in B, but B is not subset of, so I can write but B is of C. Why? -1 है. If you add -1 belongs to B, but -1 does not belongs to C. C. Therefore, we can say that C is subset of B, but B is not subset of C. Therefore, we can write B is not equal to C. So C is a proper subset of B. So C and B में क्या relation है? C is a proper subset of B. What about A and D? I can directly write as A and D are same. तीनों एलिमेंट सेम है. कौन कौन से तीन एलिमेंट है? 0, 1, 2. तो इसका जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, तो ये मिल जाएगा A and D are equal. Therefore, I can write A and D are equal. और कौन सा सबसेट रिलेशन आप लगा सकते हो इस प्रॉब्लम में? E, can I say that E is a proper subset of A? देखो जरा. Yes. E is a proper subset of A. Yes. Similarly, E is a proper subset of D. दोनों तो इक्वल है. So I can write E is subset of A and A is not a subset. I will just scroll it down little bit. A is not a subset of E. Okay. So आपको दो ही सेट इक्वल मिलेंगे और दो सेट कौन से इक्वल मिलेंगे? That is A is equal to D. So आपको ये सब लिखना पड़ेगा आंसर में. You have to write this answer में. You have to draw this number line and you have to express this set where there is a real number. और जहाँ पे इंटीजर्स है वहां पे आपको वो सेट लिखना है, आइदर डॉट डॉट के फॉर्म में या फिर अगर वो फाइनाइट सेट है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीन ही एलिमेंट है तो तीनों के तीनों स्पेसिफाई करो. 5 एलिमेंट है, पांचों के पांचों स्पेसिफाई करो एंड लिखो. ओके, अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? Yes, sir. Okay, so let's move on to the next. Distinction between belongs to and subset set. Let us discuss one by one. A को डिस्कस करते हैं पहले. Is it true or false? True. Correct, true है क्योंकि 2 belongs to 1, 2 and 3. What about B? False. False. Why I can say false? I can write singleton 2 is a subset of 1, 2 and 3. It is not belongs to the 1, 2 and 3, but it is a subset of 1, 2 and 3. What about C? Is
फॉल्स, True. False. फॉल्स है, क्योंकि 2 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 2 is a member of this set, not a subset of this set. 2 belongs to 1, 2, 3. 2 is a subset नहीं है, 2 is a member of this set, and when I include 2 in the braces, that means it is a set. So set is a subset, right? और ये element of a subset, element of the set. What about D? True, sir. True. True. What about E? False. False. ये क्यों false है? Because वो सेट के अंदर ऐसे ही एलिमेंट है, so I can write this belongs to the set which contains two sets. Singleton 1 is first set and singleton 2 is the second set. तो ये जो राइट हैंड साइड में सेट है वहां पे दो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स भी सेट. ओके, व्हाट अबाउट F? True. True. As I can write the same reason. Yes, sir. Okay, it is not a subset, it is a belongs to the set. So understood the distinction between belongs to and subset? ये clear है सबको? Yes, sir. Okay. Let's go on to the next say order pair. So let's first understand what is order pair. Okay. आपको ये बुक है ना बहुत बड़ा है, तो आपको इसमें से ना एग्जाम्पल्स जो भी दिए रहेंगे और डेफिनेशन जो भी दिए रहेंगे वो करना है अच्छे से. तो फर्स्ट डिफाइन करते हैं व्हाट इज ऑर्डर पेयर. ओके, गिवन एलिमेंट A and B, द सिंबल इन द ब्रैकेट A, B. यहाँ पे दो तरह से सिंबल होता है. ये सिंबल हम लोग सेट के लिए भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when I write this set A, B, the symbol A, B means this set as well. तो आपको देखना पड़ेगा कौन से कंटेक्स्ट में वो यूज किया है, ऑर्डर पेयर के कंसेंट में यूज किया है या फिर सेट के कंसेंट में यूज किया है. तो अगर ऐसे दिया जाएगा ए बी, इट इज अ एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी विदाउट इंक्लूडिंग ए एंड बी. तो आपको कंटेंट्स देखना पड़ेगा कि कौन से कंटेक्स्ट में वो यूज किया है. ठीक है. तो गिवन elements A and B, the symbol A, B denotes the ordered pair consists of A and B together with the specification that A is the first element of the pair and B is the second element. The ordered pairs A, B and C, D are equal if and only if their first element equal and their second elements are equal. Okay, let me give the proper meaning to this. आपने प्लेन देखा है, what is this called? कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन. ओके, करेक्ट. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, निगेटिव साइड में है. तो लेट अस कंसीडर ओनली पॉजिटिव साइड. ठीक है. मैं कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, मुझे ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना है. I will draw the perpendicular on this axis. I will draw the perpendicular on this axis. पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखते हैं. सिमिलरली अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे एलिमेंट है जो y एक्सिस पे 3 है एंड x एक्सिस पे 2 है, तो I will write 2, 3. So this is called as a ordered pair. Why it is called ordered pair? क्योंकि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. हमेशा याद रखो 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 2. Why? Because this is x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 3 है. 3, 2 मतलब x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 2 है.
This is the order pair 3, 2. So understood the difference between 2, 3 and 3, 2. Order is important. जिस element में order है, first element should be equal to the first element, second element should be equal to the second element, then only we can say that ordered pair are equal. So वही यहाँ पे बोला है AB is equal to CD if the first element A and C are equal and the second element B and D are equal. तो order pair equal कब होते हैं? जब their first element as well as second element are equal. So let us go back to the examples. Example से फटाफट समझता है अपने को. Can I say that ordered pair 1, 2 is same as 2, 1? Can I say that? No. Yes. No, it is not possible. What about second? True. So I will write over here. A is false. Why it is false? As 1 is not equal to True. B. It is true. Why it is true? But root 3 is equal to 3 and we can write 1 Sorry, by 3 can be equal to root of 9. And what is the second pair? 5, 10. 5 upon 10 is same as 1 One. by. Okay. What about C? What is the first element of 1, 1? 1. 1. 1 is the first element of order pair 1, 1. What is the second element? 1. Second element is also 1. यहाँ पे क्या है first? अगर मैंने order pair लिखा 2, 3. What is the first element? 2. 2. This is your first element and this is your Second. second element. Okay. जरूरी नहीं है कि अपने को 2 ही ऑर्डर पेयर लेना है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट द ऑर्डर पेयर 3 ऑर्डर पेयर. जब मैं प्लेन में रिप्रेजेंट करता हूं तो आई विल गेट 3 कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, राइट. सो द ऑर्डर पेयर 3 ट्रिपलेट में लिखते हैं, कभी कभी 4 टाइम्स. अगर आपके पास 4 सेट्स है तो आप क्या लिखोगे? एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू. और हमेशा क्या चेक करना है आपको? 2 ऑर्डर पेयर. I have to write say another pair say x1, y1, z1 and w1. When I can say that these 2 order pairs are equal? When first element x should be equal to first element here x1, second element should be second element, third element should be equal to third element and fourth element should be equal to fourth element. Then only I can say that these ordered tuples are equal. So let us define this first. प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं इसका कैसे डिफाइन किया इन्होंने. देखो, n is a positive integer, x1, x2, x3, xn are the elements. The order tuple क्या है? x1, x2 dot 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 xn consisting of x1, x2, xn together with the ordering, that is first x1, then x2, then x3, then x4 and so on. The order टपल, सेकेंड ऑर्डर टपल बोलते हैं उसको, ऑर्डर पेयर बोलेंगे. अगर उसका ऑर्डर 3 है तो उसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे एंड सो ऑन. अगर 2 ऑर्डर टपल इक्वल कब होते हैं? जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होते हैं, सेकेंड एलिमेंट इक्वल होते हैं, थर्ड एलिमेंट इक्वल होते हैं, सो ऑन द लास्ट एलिमेंट तक इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर एन टपल आर इक्वल. सो ये कंसेप्ट अगर आप एग्जाम्पल से देखोगे तो आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? ऑर्डर 4 टपल है. फर्स्ट एलिमेंट कौन सा इसका? What is the first element over here? 1. 1. What is the second element over here? 2. 2. यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है? 2. बट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4. so I can write this is not equal. Yes, sir.
So I can write this is false. false as क्यों false है? 3 is 3 not not 4. What about this? Can I say 3 is equal to root 9? yes Yes, sir. sir. Yes, it is true. What about minus 2 square? True. True, sir. Yes. 4 It is same as 4 equals to क्योंकि 4. माइनस या प्लस हो दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है. Yes sir. Can I say 1/2 equal to 3/6? 3. Yes sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो तीनों के तीनों पॉसिबल है. 3 is equal to root 9 minus 2 square is equal to 4 and 1/2 is equal to 3/6. तो तीनों पॉसिबल है. So this statement is true. 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 Okay. So understood the concept of n tuples. N tuples में क्या होता है? There are n elements and written in order. मतलब पहला एलिमेंट कौन सा है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, वो इम्पोर्टेंट है. सेट्स में वो इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे मैंने सेट में बोला था, when I write the set, it is same, right? 1 2 3 is same as the set 2 3 1. Yes, order is not important in the set, but in order tuple, order is important. 1 2 3 in the round bracket is not equal to 2 3 1. Okay, when order matter, it is order tuple. Okay, set में order is not important. So let me erase this all जो नहीं चाहिए. Okay, ठीक है. तो ये हो गया ऑर्डर एंड टपल का डिस्क्रिप्शन. लेट अस गो फर्दर. लेट मी गो टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मैंने आपको डायग्राम से समझाया, कहाँ पे था वो डायग्राम? हाँ, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. वाई वी कॉल कार्टेशियन प्लेन? यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे बी है, तो ये एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स का कोऑर्डिनेट फर्स्ट, देन वाई का कोऑर्डिनेट. तो व्हाट इज दिस नोटेशन? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा कि वी हैव टू सेट. ए इज द फर्स्ट सेट, बी इज द सेकेंड सेट. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज ए में एलिमेंट है A1 A2 A3 A4, 4 एलिमेंट है. बी में सपोज 2 एलिमेंट है, B1 एंड B2. So when I define the Cartesian product क्या होता है? It is collection of all the ordered pair of the form A comma B, where A belongs to the first set and B belongs to the second set. This is called as a Cartesian product. अगर n times है, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस AN, तो हम लोग को कैसे लिखना है? ऑर्डर n टपल A1 A2 डॉट 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 AN, where A1 belongs to first set, A2 belongs to the second set and last element belongs to last set. मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा, थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड सेट से आएगा एंड लास्ट वाला एलिमेंट लास्ट सेट से आएगा. ओके, so this is how the Cartesian product is defined. Okay, what is about the two sets A1 cross A2, A1 comma A2, where A1 is in the first set and A2 is in the second set. तो Cartesian product में कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर A में 4 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्ट होता है? 4 into 2 8. 8. 4 into 2 8 एलिमेंट. कैसे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट? फॉर एग्जांपल मुझे अगर A क्रॉस B लिखना है इस केस में, व्हाट आई विल राइट? देखो, एक पहले A1 को लो, उसको B के साथ हर एक एलिमेंट के साथ मैच करो. दैट इज A1 comma B1, A1 comma B2.
ओके, देन A2 को लो, दो एलिमेंट के साथ मैच करो, क्या होगा? A2 कॉमा B1, A2 कॉमा B2, ठीक है। देन थर्ड वाला एलिमेंट लो, A3, A3 कॉमा B1 एंड A3 कॉमा B2। देन फोर्थ वाला एलिमेंट क्या होगा? A4 कॉमा B1, A4 कॉमा B2। सेट कंप्लीट। इसमें से कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ इक्वल है क्या? कैन आई से फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट? फर्स्ट कंपोनेंट तो सेम है, A1 है, यहाँ पे भी A1 है, बट B1 एंड B2 डिफरेंट है, तो डिफरेंट हुआ। अगर मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूँ और लास्ट वाला A4 B1 लेता हूँ, सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A4 है। So these are all the distinct elements of set A cross B. So understood the Cartesian product. Cartesian product में क्या करना है? पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेना है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लेना है। इतना दो का तो याद रखो, बाकी तीन का वगैरह डेवलप हो जाएगा। आप अगर दो का लिख पाओगे तो तीन का, चार का, पांच का, सबका लिख पाओगे। ओके Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us go to this particular thing. Let me erase all this. Let us go back to our notes. आप इसका चिंता मत करो अभी, क्योंकि ये जो नोटबुक है मेरा, ये नोटबुक मैं शेयर करता हूँ जब आपके पास आईडी आता है, क्योंकि ये वन नोट जो है वो जिसके पास आईडी है उनको यूज होगा। तो आप जब आपका पहले के लेक्चर में भी जो हमने किया था कैलकुलेशन, वो सब भी सेव्ड है इसमें। ओके, यू नीड दैट पासवर्ड, आईडी एंड पासवर्ड टू व्यू दिस। तो जब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा एक दो हफ्ते में, तो आपको ये मिल जाएगा, एक्सेस भी मिल जाएगा इसका, जिसमें आप देख सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। ओके, लेट टेक कॉन्क्रीट एग्जांपल। वी हैव गिवन द थ्री सेट A is equal to x, y, B is equal to 1, 2, 3 and C is equal to A, B. What we have to write? We have to write all this set. Let us write one by one. तो अभी आपको रेड इंक से लिखते हैं, क्योंकि आपको ब्लैक इंक से बहुत कंटाला आया होगा। मेरा कर्सर कहाँ है? ओके, A, can you tell me the A cross B? What is the X definition? into 1. Let us first write the definition. क्या definition है? It is ordered pair A, B such that A belongs to the first set and B belongs to the Second set. second set, like this. Okay, after writing the definition you write the set. फर्स्ट सेट कौन सा है? X लेते हैं, X है यहाँ पे, X को हर एक एलिमेंट के साथ मैच कर देते हैं। तो लेट अस राइट X, 1, X, 2 and X, 3. X, 3. What is the second set? Y है, Y Yes. को कंबाइन करो, Y, Y, 1, Y, 2 Y, 3. हो गया। B, what is B cross A? 1, X. पहले 1, second element का पहले लेंगे 1, X. X, 1, then 1, then X. 2, X. X. सर इसके लिए सेट बिल्डर लिखने की जरूरी नहीं है।
आपका भी चालू है, नॉइज हो रहा है? सर हाँ। इसके लिए सेट बिल्डर लिखना जरूरी नहीं है? देखो, अगर आपका सेम क्वेश्चन में आप कंटिन्यू कर रहे हो तो एक ही बार में लिखो, ओके। अगर वो डिफरेंट क्वेश्चन में लिख रहे हो, मतलब क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है एंड क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है, तो कोई तो एक में आपको कंसेप्ट लिखना चाहिए कि वो कैसे आपने डिफाइन किया। अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट पता है तो मुझे पता है बी कॉमा ए क्या होगा, बी कॉमा ए वेयर बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, ओके। देन व्हाट अबाउट द थर्ड, सी पार्ट क्या है? A comma A. X into A cross A. ए क्रॉस एक्स। लेट्स राइट, यहाँ पे बहुत जरूरी है तो यहाँ पे मैं सेट बिल्डर लिखूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोग सेट को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें बहुत सारे जन मिस्टेक क्या करते हैं, दे राइट लाइक दिस, ए कॉमा ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। So let me correct this. This is also the form of the set is A comma B, where both the element A comma B belongs to A. Understood the difference between this set? अगर मैं A comma A के फॉर्म में लिखता तो मेरे पास सिर्फ 4 एलिमेंट दो ही एलिमेंट रहते, x comma x and x comma y, y comma y. But we want this element x comma x, x comma y, y comma x, Y comma Y. y comma y. Therefore, be sure that when you write this set a comma a, you include all the 4 elements, not just 2 elements. जब a comma a के फॉर्म में लिखोगे तो आपके दो ही एलिमेंट इंक्लूड होंगे, x comma x एंड y comma y। ये दो इंक्लूड होंगे और ये दो इंक्लूड नहीं होंगे अगर मैं पहली तरह लिखता, a comma a लिखता। So we have to take care in case both the first set and second set are equal in the Cartesian product. अभी थर्ड डी पार्ट में क्या बोला है, कितने एलिमेंट्स है? कैन यू राइट हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी? कितने एलिमेंट है Six. गिनो? 1 2 Six. 3 4 5 6, which is the, कहाँ गए कर, these are the 6 elements. So cardinality B is same as cardinality of A into cardinality of B, right? You can remember this formula, cardinality of A cross B is same as cardinality of A into cardinality of B. मतलब क्या है, A में 2 elements है, B में 3 elements है, तो 2 into 3 6 element will be A cross B. How many elements in B cross A? 6. Again 6 elements. How many elements in A cross A? 4. 4 elements. Okay. So let us write the third set EFG. वो लिखते हैं, तो उसके लिए मैं स्पेस इंक्लूड करता हूँ। मुझे वो स्क्रोलिंग करना पसंद नहीं है, बट ठीक है, we'll continue on the same page. What we want A cross B in the first bracket cross C. Okay. A cross B in the first bracket and then cross C. So let us write D. D का मैंने ऊपर ही आंसर लिख दिया, तो D को नहीं लिखते हैं, E लिखते हैं। We want the set A cross B in the first bracket into C. So first we want A cross B. A cross B हमने already calculate किया है, right? Yes. Into C करना है, तो it is the element of the form, क्या लिख सकते हो आप? से I can write this as it is of the form like this, A comma B
comma C bracket, where A belongs to A, B belongs to B, and C belongs to C. Let us write this set. Remember which are the element A, B, C में कौन कौन से element है, नहीं पता है आपको तो हम उसको copy paste यहाँ पे कर लेंगे. Let me take this. Sorry. अभी अच्छे से दिख रहा है, so I can write the elements, right? Okay, so let us write this element. पहला एलिमेंट क्या लिखोगे? x, 1 which is the first element in that set, and C में पहला एलिमेंट क्या है? A. So I can write this like this, comma. सेकेंड एलिमेंट क्या है? वो A क्रॉस B में x, 2 इंटू सॉरी, ठीक है, x, 1 ही रखते हैं. सेकेंड एलिमेंट इज B, comma. What is the third element in the set? x, 2. x, 2 को हर एक एलिमेंट के साथ कंबाइन करो. A के साथ कंबाइन किया, x, 2 को इस एलिमेंट के साथ कंबाइन करो, B के साथ कंबाइन करो, B के साथ कंबाइन किया, देन x, 3 उसको A के साथ कंबाइन किया, देन x, 3 को B के साथ कंबाइन किया. What is fourth element? y, 1 in A क्रॉस B, उसको A के साथ कंबाइन किया, एंड y, 1 को B के साथ भी कंबाइन किया, कॉमा, देन y, 2 को A के साथ कंबाइन करो, एंड y, 2 को B के साथ कंबाइन करो, देन y, 3 इज द एलिमेंट, उसको A के साथ कंबाइन करो, एंड सिमिलरली y, 3 को B के साथ कंबाइन करो, एंड दिस कंप्लीट्स द सेट. कितने एलिमेंट है? A क्रॉस B क्रॉस C में 12 elements, where first element is in the A cross B and second element is in the C. Okay, understood the process. First element in A cross B. So A cross B हमने पहले ही फाइंड किया है, उसका हर एक एलिमेंट को आप कंबाइन करो. ओके, x, 1, x, 2, x, x, 1, x, 2, x, 3, y, 1, y, 2, ये 6 एलिमेंट हमको A क्रॉस B में मिलेंगे. A क्रॉस B के हर एक एलिमेंट को C के एलिमेंट के साथ कंबाइन. लेट अस राइट F. F में क्या था? ऑल 3 प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C, राइट? अभी मुझे बताओ इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? ये सिंपल है. इट इज A, B, C सच दैट A कहां पे होगा? A में होगा, B कहां पे होगा? B में होगा, और C कहां पे होगा? C में होगा. ओके, टेल मी द सेट. व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट? X को कंबाइन करते हैं, so let us write
x, what is the first element in the set? 1. 1 What is the first element in the comma set? a कॉमा ए। अभी पहले दो एलिमेंट सेम रखते हैं, थर्ड एलिमेंट चेंज करते हैं। ओके, x, 1, थर्ड एलिमेंट विल बी B. b। देन अभी ये पूरा a एंड b कवर हुआ c का। अभी सेकंड एलिमेंट चेंज करते हैं। आपने वो लिखा है क्या, बाइनरी डिजिट लिखते हैं आप कभी भी? यस सर, कैसे लिखते हो? 0 0 0 0 एंड 1 का सीक्वेंस। 0 0 1 मतलब क्या है, लास्ट डिजिट पहले चेंज किया, अभी लास्ट डिजिट दोनों चेंज हो गए तो आप सेकंड लास्ट डिजिट चेंज करते हो, लाइक 0 1 0 0 1 1। देन व्हाट यू डू, अभी क्या करोगे, फर्स्ट वाला डिजिट चेंज करोगे। तो 1 0 0 1 0 1, देन 1 1 0 1 1 1। कैसे किया आपने? पहले लास्ट डिजिट को चेंज किया, लास्ट डिजिट का चेंज हो गया, फिर सेकंड डिजिट को चेंज किया, सेकंड डिजिट का हो गया, फिर थर्ड डिजिट को चेंज किया, और फिर से वो 4 प्रोसेस रिपीट किया, राइट? 0 0 यहाँ पे भी 0 0 है, 0 1 है तो यहाँ पे भी 0 1 है, 1 0 है तो यहाँ पे भी 1 0 है, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 है। तो वैसे ही हम लोग को करना है। पहले हमने क्या किया, लास्ट डिजिट को चेंज किया, मतलब ए बी इज द पार्ट ऑफ सी, सी का पार्ट है ए बी, तो पहले वो चेंज किया। अभी कौन सा चेंज होगा बोलो? सेकंड वाला चेंज होगा। सेकंड वाला पोजीशन क्या है, 1 के जगह पे 2 लगते हैं, x to a एंड x, 2, B. c। अभी सेकंड का पोजीशन खत्म हो गया, फिर सेकंड का थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड एलिमेंट है, तो आई कैन राइट X, 3. x 3, a and x, p, b। ये सिर्फ सिंपल करने के लिए आपको ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस करने हैं। ओके, देन अभी x का पूरा खत्म हो गया, अभी पहला वाला ही बदलते हैं। पहला वाले में y रखो और ये 6 के 6 एलिमेंट रिपीट करो। पहले में y रखा, पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 1, a, सो आई कैन राइट दिस इज y 1, a। ओके, चेंज करो, यहाँ पे क्या है, 1, b, सो आई कैन राइट y 1 b। नेक्स्ट वाला में क्या है, 2, a इन द लास्ट, so I can write y 2 a। नेक्स्ट में क्या है, 2, b है, so I can write y 2 and b। नेक्स्ट में क्या है, y 3 a, y 3, ये क्यों नहीं अच्छे से लिख रहा है, एंड a, एंड लास्ट में y p b। This completes the set A cross B cross C. Let us take what is G. ये समझे यहाँ तक? Yes, sir. Let us go back to the PDF to understand the infinite product. Infinite in the sense R cross R. तो R cross R मतलब कार्टेशियन प्लेन। आपने, मैंने जैसे बोला, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट होने दो ये कार्टेशियन प्लेन में, वो किससे डिनोट करेंगे हम लोग, R क्रॉस R। R क्रॉस R का मतलब क्या है, लेट अस राइट ओवर हियर बाय द डेफिनेशन सेट बिल्डर मेथड से। आप बोलो मुझे R क्रॉस R का मतलब क्या है। अरे वही होगा ना, A, B, वेयर A, B belongs to real number. Now tell me, can I say root 2, 2.5
belongs to R cross R? How you will check that whether this statement is true or false? कैसे check ये? Can I say root 2 belongs to R? फर्स्ट सेट में है क्या? ये वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट इज इन द फर्स्ट सेट, रियल नंबर का पार्ट है वो? No, sir. Yes, no? Root 2 is a irrational number. Irrational number is also part of real number. 2.5 is a rational number. Rational number is also part of a real number. Therefore, this element belongs to R cross R. Can you give me another example? कोई भी एक order pair बताओ जो R का हिस्सा होंगे. R cross R का. Anyone? Root 9. Root 9 and 3. Okay. Can I say that root 9 and 3 belongs to R cross R? Yes. Yes, sir. अभी कोई एक एग्जांपल जो R cross R में नहीं होंगे. R cross R में जो नहीं होंगे ऐसा एक एग्जांपल दो. For example, root of -1, 2. This does not belongs to R cross R. Why it does not belongs to R cross R? Because That root 1 is not part of this. This creates a problem, right? yes, ये जो root of -1 है, it is a complex number. It is not part of a real number. Therefore, this is not belongs to R. तो ये इसमें जो भी प्लॉट कर सकते हो ये डायग्राम पे, जो भी चीज आपको प्लॉट कर सकते हो आप, वो सब आपका हिस्सा है. मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये प्लेन में कोई भी पॉइंट लो, उसका आपको R क्रॉस R में मिलेगा. ओके. Whatever you can plot on the number line, this number plane, कार्टेशियन प्लेन पे जो भी पॉइंट्स आप प्लॉट कर सकते हो, सभी किसके हिस्सा है? R क्रॉस R के हिस्सा है. अभी आप मुझे बताओ कि Z क्रॉस Z होगा तो क्या होगा? ओनली द ग्रिड. तो यहाँ पे जो पॉइंट है जो ग्रिड में है वही हिस्सा होंगे. मिडल पॉइंट्स आर नॉट इन द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. तो अगर R क्रॉस R की जगह पे Z क्रॉस Z होता तो मुझे क्या मिलता? वो जो 1/1 का स्क्वायर है उसके एंड पॉइंट से वही पॉइंट्स इसमें होते. मिडल पॉइंट्स लाइक दिस इज नॉट पार्ट ऑफ R, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ R, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ Z क्रॉस Z. Z क्रॉस Z में क्या होंगे? ऑल द एलिमेंट्स वेयर कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर. यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए वो सभी इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है, तो वो Z क्रॉस Z का हिस्सा होंगे. ओके. तो लेट अस स्टॉप आवर लेक्चर ओवर हियर. कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हम लोग स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर. लेट मी जस्ट okay, sir. because you have to join tonight's lecture as well. Just Yes. wait. I will just download the attendance sheet and then you can go. Okay. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye Thank you, everyone. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.